Assalamu alaikum respected students and welcome back to my YouTube channel। हम लोग आज सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर करेंगे चैप्टर 16 क्लास 9 मैथमेटिक्स का। पहले थ्योरम जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में आपके पास बेसिकली ये जो आपके पास चैप्टर है ये थ्योरम्स आर रिलेटेड विद एरिया, तो आज इसको हम लोग सेकंड थ्योरम करेंगे। So let's start our second theorem. The statement is parallelograms on equal bases and having the same or equal altitudes are equal in area. Students, what I informed you earlier that we will solve the theorems here related to the area. So what is given here? Parallelograms on equal bases. So first understand equal bases. Equal bases mean आपको पता होगा कि between the same parallel lines का असल मकसद ये between the same parallel lines है। जो चीज इन दोनों lines के anything which is present or we can draw any shape, okay, any polygon, triangle, parallelogram or whatsoever. So between these two lines is known as between the same parallel lines. Okay, parallelograms on the equal basis. So equal basis and same basis, they are totally different from each other. Equal basis means they have equal in width but not the same basis. Same basis means if I draw like this, if you see students, okay, if this is the one diagram and this is another parallelogram, so they have equal bases but not the same base. So same base means what? If I draw this shape, here like this, so this is concept of same base. Same base. Look, this parallelogram and this parallelogram have the same base. Both of them are here. So this is known as a same base. But in equal bases, the condition is comparatively different. So why it is different? Look here. These are two between the same parallel lines, and this is your one parallelogram, and this is your second parallelogram. If I say here, look, so they have the same basis and having the equal altitudes. So what equal altitudes? Look here. Altitude means this. जाहिर है ये between the same parallel lines है। पैरेलल लाइन मींस बिल्कुल एक जैसी लाइंस है, बिल्कुल एक जैसी सीधी, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर तो इनके एल्टीट्यूड्स बिकम इक्वल। अब क्या कहते हैं आर इक्वल इन एरिया मींस पैरेललोग्राम्स विद द सेम बेस एंड विद द सेम एल्टीट्यूड एंड इक्वल एल्टीट्यूड्स। वी नीड टू प्रूव हियर कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है अगर सेम बेस भी है और एल्टीट्यूड्स भी इक्वल, तो इनसे बनने वाला एरिया जो है दोनों पैरेललोग्राम्स का वो भी क्या होगा? इक्वल। हमें ये चीज प्रूव करनी है इसके अंदर। सो गिवन क्या क्या है आपको मैं बताता चलता हूं कि गिवन क्या क्या हमारे पास इस डायग्राम। इसको मैं क्लीन डायग्राम्स बनाता हूं आपके लिए। ये देखिए ऑन इक्वल बेसिस। देखिए इक्वल बेसिस का मतलब है कि वो सेम एल्टीट्यूड, इट मींस कि दे विल सेटिस्फाई द सेम पैरेलल लाइंस कंडीशन है। सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम हियर। सो दिस इज आवर फर्स्ट पैरेललोग्राम between the same parallel lines. Okay, this is our second parallelogram. Okay, if I say make it a proper name like this A, B, C, D, यानी इनकी तरतीब इस तरीके से करेंगे तो आपको याद करने में भी डायग्राम क्या रहेगी? आसान रहेगी। कि ऊपर से A, B, C, D, इसी तरह यहां से शुरू करेंगे E, यहां पे F, सीक्वेंस में G और यहां पे आपके पास H। तो ये प्रूव करना है कि इन दोनों ये जो दो पैराग्राफ्स है 1 और 2, इनका एरिया भी क्या होगा? आपस में इक्वल। ये चीज हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करनी है। सो गिवन क्या क्या देगा? इक्वल बेसिस, इक्वल एल्टीट्यूड, means totally so simple. So I draw
a paragram A, B, C, D and E, F, G, H are on the equal basis. So what are the bases of this one? This one is the base of first paragram and this is the paragram with the second base. अब इन दोनों के बेसिस के इक्वल है, मैं इक्वल इन लेंथ भी है, कह सकते हैं इसको. ओके, बी सी एंड एफ जी आर द बेसिस आर इक्वल एल्टीट्यूड. दिस क्योंकि सेम पैरेलल लाइंस है तो इनके एल्टीट्यूड भी क्या होगा आपके पास, यानी हाइट भी क्या होगी, मींस इन अदर वर्ड्स will be same. So what we need to prove, students? I need to prove, or we need to prove that these two parallels A, B, C, D, area of this one will also be equal to the area of other parallelogram. Okay. So what the next step? The next step is construction. Okay. अब हमें ये करना है कि दोनों के एरियाज प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों के दरमियान एक और पैराग्राम ड्रा करेंगे जो कि इन दोनों की जो बेसिस है उसको सेम ड्रा कर देगी. कैसे? देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे ड्रा कर रहा हूं. देखिए मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूं कि मैं प्लेस द पैराग्राम ए बी सी डी एंड एफ सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी आर इन स्ट्रेट लाइन. देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है जी, कि जो आपकी पैराग्राम है ए बी सी डी ई एफ जी एच सो दैट द इक्वल बेसिस आर इन स्ट्रेट line B C F G, then we will join B to E and C to H. कंस्ट्रक्शन से होगा क्या कि देखें, इफ आई मैं इन दोनों को, ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप है, मैं बी और ई को आपस में ज्वाइन कर देता हूं, फिर बी टू ई ज्वाइन हो गया. अब मैं सी टू एच देखें, ये देखिए ये सी टू एच ज्वाइन होगी इस दूसरी पैराग्राम. अब ये देखें कि ये जो पैराग्राम बनेगी इसके दरमियान वाली कौन सी, बी सी एफ एच. ये पैराग्राम ऐसी है कि जिसका एक बेस एडी एक पैराग्राम से है और दूसरी बेस इसकी दूसरी पैराग्राम के साथ जाके कोइंसाइड हो रही है. तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये जो पैराग्राम ड्रा होगी ये इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देगी, यानी हम इनके एरिया तक, यानी दोनों के एरिया को पहुंचने के लिए ये जो हमने ज्वाइन की है कि बी को ई के साथ ज्वाइन कर दिया और सी को एच के साथ ज्वाइन कर दिया. अब आप ये देखिए कि ये जो पैराग्राम है इन दोनों के दरमियान क्या बिल्कुल कॉमन आ गई है. दोनों के एक की बेस इस तरफ है और इसकी अपोजिट बेस से इस पैराग्राम को हमने कर दिया, ड्रॉ कर दिया. अच्छा, अब होगा क्या, लुक हियर, प्लेस द पैराग्राम ए बी सी डी सो दैट देयर इक्वल बेसिस. अब ये देखें कि इनकी इक्वल बेसिस है आपके पास. बेस क्या है, बी सी एफ जी. जब इक्वल बेसिस स्ट्रेट लाइन कौन सी है, बी सी एफ जी. अब हमने क्या किया, हमने बी को ई के साथ ज्वाइन कर दिया और सी को एच के साथ ज्वाइन कर दिया. बेसिक पर्पस ये था कि जब ये पैराग्राम जो होगी ना, हम इसको पहले पैराग्राम प्रूफ करेंगे जो नहीं हमने ड्रॉ की. जब ये पैराग्राम प्रूफ करेंगे, जब ये, तो हम ये करेंगे कि ये जो पैराग्राम है ये इन दोनों के दरमियान आ गई है. ठीक है, ये पैराग्राम इसके इक्वल है और ये पैराग्राम हमारे पास इसके इक्वल भी है. जब ये पैराग्राम दोनों के दरमियान कॉमन आ जाएगी तो इस पैराग्राम के एरिया पहली वाले के साथ और इसी पैराग्राम के एरिया दूसरी पैराग्राम के साथ इक्वल होकर हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है उस तक हम लोग पहुंच जाएंगे. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टेप. तो अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे. मैंने आपको ऑलरेडी बताया. अब ये देखिए स्टेटमेंट में द गिवन पैराग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. देखिए इस चैप्टर के शुरू में जब भी मैंने आपको डेफिनेशंस का लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, हमेशा याद रखें इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है इनके दरमियान बनने वाली कोई भी पॉलीगॉन्स, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो दोनों पैराग्राम्स हैं, चाहे एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक ट्राइंगल है, एक पैराग्राम या एक ट्राइंगल है, जो भी बनेगी वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस की कंडीशन को मस्ट सेटिस्फाई करती होंगी. अब ये देखें देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल.
अब ये वही बात आ गई कि हम जब कह रहे हैं कि आर बिटवीन सेम पैरेलल, हमें पता है कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, उसकी रीजन क्या है कि इन दोनों के एल्टीट्यूड्स भी क्या है, सेम। एल्टीट्यूड मींस बिल्कुल इक्वल इन हाइट्स कह सकते हैं आप इसको। ये नहीं है कि पैराग्राम ऊपर जाके यूं होगी और इधर से नहीं, वो पैराग्राम नहीं बनेगी। ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, यूं करके ड्रॉ हो रही है। तो इसका ये नहीं हो सकता कि अगर आप ऊपर वाली को सही बनाते हो नीचे को यूं करके बना दें। क्यों कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, क्यों एक ऐसा टाइम आएगा कि दे विल cross it, so they will not satisfy the between the same parallel lines concept. Okay, come to the next. ADEH is a straight line parallel to BC. अब ये देखें ADEH ये स्ट्रेट लाइन बन गई किसके पैरेलल, आपके पास BC। लेकिन BC जो है वो किसके इक्वल आ रही है, देखें ये और ये अगर पैरेललोग्राम है, देखिए अगर पैरेललोग्राम होती है तो उसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि ABCD एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी बेस नीचे BC के वाली बेस ले लेंगे, इसके पैरेलल आ गई। अब ये बेस किस, ये वाली बेस, ये बेस और ये बेस आपस में क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए देखिए ADBC इज इक्वल टू FG, सॉरी BC और FG आपस में पैरेलल, में ये बताना चाहता था कि BC और FG आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों कि ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है बिटवीन द सेम, ये देखिए गिवन आ गया। अब ये देखिए कि BC FG की इक्वल आ गई, लेकिन BC जो है वो आपके पास किसकी इक्वल है, EH के भी। उसकी रीजन कि आपके पास ये स्टेप होगा गिवन, तो FG बेसिकली किसकी इक्वल थी, EH के, ठीक है। और BC हम ले चले थे ये वाली बेस, अब इसके क्या आगे इक्वल आ गई, उससे ये होगा कि BC EH ये भी क्या बन जाएगी हमारे पास पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप फॉर यू दैट हाउ टू राइट द स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। हमने वी स्टार्ट फ्रॉम हियर ADEH, ये इट इज पैरेलल टू दिस बेस एंड दिस बेस is equal to this base, but this base is parallel to this one EH because it's a parallelogram. So EH BC is congruent to FG and FG is equal to this one, equal, so not congruent, equal. So what does it mean? That BC and EH will also be parallel to each other, will also be equal to each other, and they will satisfy the condition of your parallelogram. Okay, so BCE is equal to H, so they are parallelogram. And then, so what does it mean? If these two sides are equal to each other, so what does it mean? That DE and CH automatically, or by due to this previous reason, they will also be equal to each other. Reason of your parallelogram. Students, ये था आज हमारा इस लेक्चर का, इस थ्योरम का पहला लेक्चर. So we will continue with the second lecture of the same of this theorem. Thank you.